Praise the Lord. Okay, you just sang now that if you hit on one cheek, you must give the other cheek. जैसे अभी हमने गीत गाया कि हम अगर एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल में आगे बढ़ाना है. And if you ask to go for 1 mile, go for 2 miles. अगर कहा है कि अगर आपको कोई 1 मील ले चले तो आप 2 मील चले साथ में. I'll just tell you the history behind that. मैं इसके पीछे का इतिहास Before we बताऊंगा. start. कुछ शुरुआत से पहले बताऊंगा इसका इतिहास क्या है. There's a history behind this. इसमें एक इतिहास है. See what Israel was ruled by the Romans. देखिए इजराइल पर रोमियो का राज्य था. Okay, and they were these Roman officers ये जो रोमी जो were अधिकारी very थे very crude people. बड़े क्रूर थे. Yeah, they were. So what used to happen? The lower officers, तो जो उनसे के नीचे जो अधिकारी थे when they used to go from one garrison to another garrison, one base to another base, एक यहाँ से दूसरी जगह जाना होता था. and when they used to go walking, फिर वो चल के जाना होता था. they used to catch these Israelis तो वही इजरायली को पकड़ लेते थे and give all their saman, what you say, all their things for them to carry. मतलब जो अधिकारी थे उनका जो सामान था वो इजरायली को उनके कंधों पे देते थे कि ताकि वो उनको लेके चले पाए. Okay, and when they refused, when some of them refused, और उनमें से कोई इनकार करता they used to slap them. तो उन्हें वो थप्पड़ मारते थे. So Jesus told them तो यीशु मसीह ने कहा that the only way to break the, and see, you check, if you want you can check. अगर आप चाहे आपसे जान सकते हो. The only way to break these people खाली इसको जो तोड़ना मतलब इनको बताना इस बारे में is not to retaliate. ना कि उन पर मतलब विद्रोह करना है, उनके विरोध में जाना. If he slaps you on one cheek, अगर आप उनके गाल पे मारते हो you give the another cheek. तो उनके अंदर अपना दूसरा गाल आगे करो. If you have to go for 1 mile, अगर आपको 1 मील चलना है then you say you volunteer to go for 2 miles. तो आप स्वयं उसमें 2 मील और आगे चलो. And they started it. और उन्होंने शुरुआत किस बात की. And they were so ashamed तो उनको इतनी लज्जा आई through the woman of that officer, तो through the women of these officers, जो अधिकारी की जो औरतें थी they told them stop it here. उन्होंने कहा रुक इसे Stop this. इसे रुका दो. Stop this. See, they are so such kind of people that if you give one if you slap them here, they are telling slap here. देखिए ऐसे लोग थे जब उन पे एक गाल पे आप थप्पड़ मारते तो दूसरा गाल आगे कर देगा, आप उसे थप्पड़ मारेंगे. This is the history behind. इसके पीछे का इतिहास ये है. This is the history. ये इतिहास है. See, you should know, when you read it, you should know, because it is astounding, na, that how come this is the way they stop these people. इस तरह उन्होंने लोगों को इस तरह And somebody adopted this. अब किसी ने तो उसको ग्रहण कर लिया. Are glory to God. Glory to God. Gandhi adopted this. गांधी ने से Gandhi adopted this and made a shame of the English. ये अंग्रेजों को उसमें शर्म आ गई इस बात को. This is Jesus Christ. ये यीशु मसीह है. This is Jesus. ये यीशु मसीह See, है. that is why it is essential to understand these small things. इसलिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों को समझें. And the church has to be informed regarding these things. और कलीसिया को इस बारे में बताना जरूरी है. Okay, then that singing becomes important. इसलिए को Then you know what you are singing. फिर आप समझ जाओगे आप क्या गीत गा रहे हो. Okay. Now we go back to Revelation. आइए हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं. Go back to Revelation. We are in we finished the 5th seal, but we got a little bit of the 5th seal. Little bit. तो 5th seal पढ़ो. आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 9. प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 9. आइए हम पढ़ते हैं. जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे. उन्हें बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये स्वामी ये पवित्र और सत्य तो कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का बदला कब तक न लेगा. उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया
कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान पद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो दे। This is the fifth seal. Fourth seal पढ़ो brother. 8 पढ़ो, खाली 8 पढ़ो, थोड़ा सा बाकी है. ओके, आइए अध्याय 6 का 8वां वचन पढ़ते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। Glory to God. See the ending part. We have to just go to the ending part. आखिरी भाग देखेंगे आप। आखिर का पढ़ो एकदम आखिरी का पढ़ो। hunger and death. ओके, मैं आखिरी और फ्रॉम और with hunger and death and with the beasts of the earth. ओके, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। Okay. Now you see here. If you see the ending portion that we did not do last time, जो पिछली बार ने ये नहीं कहता that this is the place where you are going to find all disease, all death. ऐसा स्थान है जहाँ हम देख रहे हैं हर तरह की बीमारी और मृत्यु के बारे में बता रहा है। Now this is the fourth seal. ये जो चौथी मोहर की बात है। And it also says here with the beasts of the earth. और ये भी बताया कि इस पृथ्वी के पशु with the beasts of the earth. Okay. Now you know that this book is symbolic. आप जानते हैं कि ये जो किताब है जो बताया गया सांकेतिक है। Yeah, it is symbolic. Okay. Now with the beasts of the earth. Now let's take the literal thing. Let's take literally the beasts of the earth. इस वन पशु के बारे में पूरी तरह देखें। Now if you see clearly, अब ध्यान पूरी साफ देखिए, the lions and the tigers and the leopards and all these things are becoming less and less. देखिए आप Correct or no? आप जानते हो कि ये सिंह है या बाघ है या चीते ये धीरे-धीरे भी कम होते जा रहे हैं। The cutting of the forest and the killing of the beasts and removing the leopard skins and all things are becoming less. आप जानते हो कि इन जानवरों के मतलब जो जंगल है वो खत्म किए जा रहे हैं, इनकी चमड़ियां निकाले जा रहे हैं, तो इस तरह से वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। Okay. So what could this be? इसका मतलब क्या है? What could this be then? ये किस तरह के वन पशु हैं? Huh? No. What could this be? See, that's why the ending I did not finish last time. With the beasts of the earth. इसलिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के वन पशु जो मैंने आखिर में बताया नहीं। You see, and our age today is atomic bombs, and our age today is a very high-tech age, na? High-tech age. Correct or no? विज्ञान ने बहुत बड़ी प्रगति की है। Okay. So this now if you check Revelation carefully, अगर आप ध्यानपूर्वक देख पढ़े, this word beast ये जो पशु बताया गया है comes 38 times in the Bible, in the book of Revelation. ये प्रकट वाक्य में 38 बार ये बताया गया है, पशु के बारे में बताया गया है। And all the time, और हर बार, everywhere, हर जगह it is pointing, ये बता रहा है, दर्शा रहा है, दृष्टि कर रहा है, towards a man, ये मनुष्य को दिखा रहा है, who is Antichrist. जो शैतान है, जो he is the man of Satan. जो Okay. जो परमेश्वर विरोधी है। They, like the Holy Trinity, जिस तरह there is another Trinity. एक पवित्र त्रैक्य है, वैसे ही और एक त्रैक्य है। There is the false prophet, जो एक झूठा भविष्यवक्ता, the beast, जो एक पशु and Satan. और शैतान। This is the, as we go in Revelation, you will see. जिसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ये भी है इनमें जो शैतान। Everywhere in Revelation, हर जगह प्रकाश वाक्य में it points to a person who is a horrible person, वो ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है जो बड़ा ही भयंकर है, Antichrist. जो परमेश्वर विरोधी है। So this points ये निर्देश करता है, बता रहा है to the people under him, जो उस व्यक्ति के अंदर अधीनता में है, who are going to spread these diseases, ये जो रोगों को फैलाने वाले हैं, through man-made diseases. जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए रोगों के द्वारा उसको फैलाने वाले हैं। Yeah, already it is started. और ये शुरुआत हो चुकी है। Or where, tell me? अब बताइए। And it is getting proved also. और ये सिद्ध भी हुआ है। Slowly it is getting proved. Yeah, correct. Glory to God. Glory to God. It is getting proved. और ये Slowly it is getting proved. That these verses are true. कि ये वचन सही है। Yeah. To the beasts of the to the horrible people under this beast, इस वन पशु का अधीनता में जो बड़े भयंकर लोग हैं, these diseases will spread. तो ये जो रोग है वो फैलाए जाएंगे। The diseases that you have never known,
ऐसे रोग जिनको आप कभी नहीं जानते थे will come upon this earth. इस पृथ्वी पर आएंगे And God will allow it. और परमेश्वर इसकी इजाजत देगा कि हो जाने दो। Why God will allow it? क्यों परमेश्वर इजाजत देगा? Tell me. आप बताइए, You must know this. आपको बताओ ना Why कि God will allow it? क्यों परमेश्वर इजाजत देगा? Huh? Not man is evil. इसलिए नहीं कि परमेश्वर Man is always evil. मनुष्य हमेशा दुष्ट Huh? है। Tell me. Revolution to start. What? Revolution to start. Revelation to start. Correct. But what is the correct term? बस सही बात शब्द क्या है? Which period is over? Grace period is over. अभी अनुग्रह का समय खत्म हुआ है। Grace period is over. अब अनुग्रह का समय खत्म हुआ है। Now is the time when judgment will start. अब जो समय होगा वो न्याय का होगा। Grace is over. अब अनुग्रह का समय। That's why we should tell people, grace is. This time you better pay heed to what the Bible is telling you. अभी ये जो समय जब अनुग्रह का समय जब आप इसमें आ जाओ। So I just came. One more thing I want to tell you. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, The Bible जो शास्त्र है was tried and tested. वो Was जो tried and tested by this world इस संसार ने इसको जांचा और परखा है, for so many centuries. कितने शताब्दियों से जांचा परखा है, Until now, और आज तक they have not found a single mistake. और आज तक उन्होंने एक गलती उसमें भी नहीं पाई। Whether it is archaeological, whether it is historical, एक ऐतिहासिक हो या अपना भूविज्ञान से हो, even geographical, और आप भौगोलिक भी देखो, geographical area, not a single. आप उसमें एक गलती नहीं पाओगे। The world has taken this book and kept on testing it. और संसार ने किताब को लेकर जांचा परखा, देखे कि कोई गलती मिलती है क्या। And now और अब the world has formed a committee अब संसार ने एक कमेटी का गठन किया है, and it has started and formed that committee. और उस कमेटी के द्वारा And rich people are funding it. और अमीर लोग उसको धन दे रहे हैं इस कमेटी के लिए। Now they are going to test the Quran. अब ये कुरान को जांचेंगे और परखेंगे, Which was never tested before. इसके पहले कभी जांचा परखा नहीं गया कुरान को, Never it was tested before. इसके पहले कभी जांचा परखा नहीं गया। Anybody who is going to test it, they are going to go come and kill them. क्योंकि जो भी जानते हैं पर उनको लोग मार डालते थे। But this committee पर ये जो कमेटी है, समिति है, in the United States जो यूएसए में, अमेरिका में है, is so powerful वो इतनी सामर्थ्यशाली है, and so much money they have उनके पास बहुत पैसा है, that they are started to test this Quran. तो ये अभी कुरान को जांचा परखने वाले हैं। This is definitely the last days. और अवश्य ये Telling you आखिरी it is दिन the last days. मैं कह रहा हूँ ये आखिरी दिन This है, is the last day. ये आखिरी दिन है। They have formed this committee. उन्होंने ये समिति का गठन किया है। They are very powerful people on this committee. देखिए इसमें बड़े सामर्थ्यशाली लोग हैं। And I'll tell you further as we go on. We'll tell you further इसमें what आगे all they have recently found out. और मैं बताऊं उन्होंने क्या क्या पाया है। But this is only for very mature people. और ये किन लोगों के जो बड़े ही मैच्योर लोग हैं, Who will not go and talk nonsense in society जो जाके समाज में कोई ऐसे बकवास नहीं because it is करेंगे, getting proved now. क्योंकि ये अभी सिद्ध हुआ है, It is going to get proved. अभी सिद्ध हुआ है। It is just like how they tested the Bible. जिस तरह उन्होंने बाइबल को जांचा परखा, For so many years they tested the Bible. कई सालों से उन्होंने जांचा परखा, Same way they are going to test that book. अब वो कुरान को भी उसी तरह वो जांचेंगे। In 3 areas: तीन क्षेत्र में, geographically, भौगोलिक, in historically, ऐतिहासिक and in prophetically. Means, और for भविष्यवाणी के example, द्वारा। if you say that this one died in this year, this died. What year he was born? Which year? All these things are going to be tested. किस साल में उमरा, किस साल में जन्म ने, सारी बातों को जांचेंगे, Everything will be tested. जो भी लिखा है सही है गलत है। And now that's why I'm telling you it is the last days. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आखिरी And दिन they है। are going to be so angry, so angry, so वे angry, कितने इतने क्रोधित हुए, इतने गुस्से हुए हैं। so angry. And so I'm going to tell you slowly about these things. इसलिए मैं आपको इसके मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ सारी बातें। Okay, now let's go forward. अब आगे बढ़ते हैं। Now one more thing is there about the people have researched अब और एक बात है जो लोग खोज करते हैं उनके बारे में, that has killed humans among the beasts, or you can say among the lower beasts or the lower, you can say lower animals. They have killed lots of humans. Which are them? और छोटे से जो पशु छोटे पशु बहुत से लोगों को मारा है, मतलब बहुत से war से ज्यादा मारा है. युद्ध से भी ज्यादा मारा है। हाँ, कौन से कौन है वो? कौन से पशु है वो? हाँ? What? Glory to God. Glory to God. Rats. रैट्स, You चूहा। see, I'm just reading to you.
मैं आपको थोड़ा पढ़ता हूँ उसके The बारे में। most destructive creature on the earth, जो पृथ्वी पर सबसे नाश करने वाला जो प्राणी so है, far as mankind is concerned, जो मनुष्य के बारे में बातें करें तो is not the lion ये सिंह नहीं है, or the bear, ना के भालू है, but the rat. कि वो है चूहा। The rat is clever, चूहा बड़ा ही बुद्धिमान है adaptable and destructive. और बड़ा ही नाश करने वाला। Listen to this carefully. आप लोग सुने, If 95% of the rat population 95% जो चूहे की जो is exterminated in a given area, in one particular area, if you kill 95% of rats अगर एक क्षेत्र में 95% अगर आप चूहों को मार डालो within 1 year, एक साल में, they will grow back to 100% again. तो फिर उसके बाद भी वो 100% बन जाते हैं एक साल के This अंदर। is only about the rat. ये सिर्फ चूहों के बारे में ऐसा है। Okay. It has killed more people उसने बहुत से लोगों को ऐसे मार दिए than wars युद्ध से ज्यादा चूहों ने लोगों को मार दिया। of history. इतिहास बताता है इस बारे में। And it makes its home वो अपने घर बनाते हैं, just where humans live. वो अपने घर वहां बनाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। Not like other. Where humans live, they live. जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे चूहे भी रहते हैं। Rats carry जो चूहे जो अपने साथ में 35 different diseases. अपने 35 रोगों को अपने साथ ले चलते रहे। The fleas of the rat, the fleas of this rat, कीड़े उनकी जो शरीर पे होते जो cause bubonic plague, उसके द्वारा प्लेग जैसा रोग आ जाता है, which killed 1/3 of the population जो एक 1/3 लोगों को मार डालता है। of Europe यूरोप के लोगों को मार in the 14th century. 14वीं शताब्दी में एक तृतीयांश लोगों को मार दिया। 1/3. एक तृतीयांश लोगों को। The fleas also carry और जो कीड़े जो ये भी बनाते हैं, मतलब a deadly disease ऐसे भयंकर रोग known as typhus, जिसे टाइफस नाम से जाना जाता है, which for 4 centuries जो 34वीं शताब्दी में has killed an estimated of 200 million. 200 मिलियन लोगों को मारा, मतलब 2 करोड़ आए This is the rat. लोगों को मार दिया, मतलब This is the चूहे rat. के कारण इतने लोग मारे गए। Okay, now, okay, rats also और जो चूहे हैं cause famine in underdeveloped countries. Cause famine हाँ, जो in अकाल है। underdeveloped countries, जो जिस देश की कोई प्रगति नहीं हुई उस देश में ऐसे अकाल ले आते which हैं, when they devour and contaminate food grains. जबकि उनके यहाँ खाने की जो कमी है वो चूहे खा लेते हैं, तो उनको कमी रह जाती है। Okay, so this is about a rat. ये है चूहे के बारे में कहानी। This is about a rat. See, this is all research stuff. देखिए ये जो खोज की गई है, Okay, now let's go further. मैं आगे बढ़ते हैं। Let's go to the fifth scene. The fifth scene. आइए हम फिर पढ़ते हैं पहले वाक्य 6 वचन 9 पांचवें मोहर के बारे में पढ़ते हैं फिर एक बार। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का बदला कब तक न लेगा। उन्हें हर एक को श्वेत वचन दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान विद्वान होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। Glory to God. Okay, now these people were killed इन लोगों को मारा गया, because of the word of God. क्यों मारा गया? कि Correct. वचन के द्वारा, परमेश्वर के कारण। Okay, now these people, whoever these people were, ये जो भी लोग हैं held to the whole counsel of God. Okay, they were telling about this whole counsel of God, complete thing about this God. Not only one side, love, not like this. प्रेम ने बाकी सारी बातें बताते When you हैं। talk about love, everybody has no problem. But when you talk about judgment, देखिए जब आप प्रेम की बात करते हो तो किसी को कोई समस्या है, लेकिन आप उसके न्याय के बारे में बात करो nobody wants. तो कोई नहीं चाहता कि न्याय की बात कोई करे। So they were talking about the whole counsel of this God, तो इस परमेश्वर ने सारी बातों के बारे में बातें बताते and थे people killed him. और लोगों ने उनकी हत्या कर दी। Now go to Galatians 1:10. आइए अब गलतियों के अध्याय में आते हैं, अध्याय 1 वचन 10। For the word of God, they were killed. अपने वचन के कारण उन्हें मारा गया।
गलती के अध्याय 1:10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। Glory to God. मुझे महिमा हो। Anybody who wants to please man, और कोई भी व्यक्ति अगर मनुष्य को प्रसन्न he करना is not चाहता a servant of the living God. है, वो इस जीवित परमेश्वर का दास नहीं है, सेवक नहीं है। Please be very clear on this. देखिए, इस बारे में आप साफ साफ समझ लो इस बात He को। is not the servant of the living God. वो इस जीवित परमेश्वर का सेवक नहीं है, He is not the servant. वो सेवक नहीं है। Anybody who wants to please man, और कोई भी व्यक्ति लोगों को खुश करना चाहता है, whenever you talk about this God, और जब भी आप इस परमेश्वर की बातें करो you will displease man. तो आप मनुष्य को दुखी करोगे, Because man is carnal. क्योंकि मनुष्य सांसारिक है। और जो who is going to please them और is कोई also जब- carnal. और जो उन्हें खुश करना चाहता है वो भी सांसारिक ही है। Okay. So these people, when the people heard like this, they wanted to kill. They wanted to kill Jesus also, no? देखिए, जब उन्होंने इस तरह की बातें सुनी तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। So यीशु मसीह में उन्होंने who are these people that तो वे John is कौन लोग थे? seeing? Who are these people ये that John कौन is थे seeing? जिसे यूहन्ना ने Come देखा? on, come on. Huh? No, no. Who are these people? ये कौन लोग थे? See, if you see carefully, और ध्यानपूर्वक आप देखो, they are crying out for vengeance. Correct वे or जो no? न्याय के बारे में पुकार रहे हैं, They are crying, take vengeance, Lord. वे कहते प्रभु तू न्याय कर, Take vengeance on these people. इन लोगों का बदला ले, Take vengeance. बदला ले। So who can they be? ये कौन लोग हैं? Come on, बताइए, come on. बताइए कौन लोग हैं? Huh? Martyred for Christ. यीशु मसीह के लिए जो बलिदान हुए, जिनकी हत्या की गई, Martyred for Christ. Father, forgive them. इधर क्षमा कर। For they know not what they do. Stephen and Jesus. And all people. स्टीफन, यीशु मसीह, If you ऐसे see the लोग, New Testament. अगर आप नए करार में देखो ऐसे लोग, Forgive them. उन्हें क्षमा कर। For they really don't know what they do. वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। Who are these people? ये लोग कौन हैं? Okay, let us see. आइए हम Let us see देखें। what Jesus only said. देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है। Okay, go to Matthew 23. आइए मत्ती अध्याय 23 Now की you ओर will get जाएं। it. फिर आप समझ जाओगे। When Peter and John wanted to call down thunder in the place of Samaria, what did Jesus say? देखिए जब यूहन्ना और याकूब ने कहा था कि ऊपर से आग बरसा दे, What did Jesus say? You यीशु know ने that. क्या कहा? You know that. आप जानते हो? Okay, go to Matthew 23, 34, 35 पढ़ो. आइए मत्ती अध्याय 23 वचन 34 और 35 हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शासकों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिसे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जो तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। Now at least tell me who the people would be. Glory to God. All Old Testament. सारे पुराने नियम की भविष्यवक्ताएं, They never knew the forgiveness. See, they never knew what is to forgive. वे नहीं जानते क्या क्षमा करना What है। is mercy, they did not know. वे नहीं जानते दया क्या है। Obey and God will bless you. वे भी जानते कि आज्ञा पालन करना। Don't obey, God will curse you. और तुम्हें प्रभु आशीर्वाद करा, तुम आज्ञा मत पालो। Two things that they knew. ये दो बातें जानते थे। You see Isaiah, read Isaiah properly. देखिए, Judgment is going to come on you. Judgment is going to come on you. Judgment is going to come on देखिए, आप you. ध्यान से पढ़े तो वहाँ पे लिखा है न्याय आप पर आने वाला, न्याय आप पर आने वाला, न्याय आने वाला है। And judgment came on Israel. और जो न्याय है जो इस्राएल पर आया, Now we'll see. When Cain killed Abel, जब काइन ने हाबिल की हत्या की, what did the Lord say? फिर प्रभु ने क्या कहा? Your brother's blood is crying unto me तेरे भाई का लहू मेरे लिए पुकार रहा from है। the ground उस जमीन से पुकार रहा है, पृथ्वी से पुकार रहा है। to take vengeance. ये कह रहा है कि बदला ले। Now let's go further. और आगे बढ़े। Here in Revelation 6, those who were slain cry out in a loud voice. वे बड़े जोर से पुकारते हैं। This is the cry of the Old Testament prophet and saints. ये सारे जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में बता रहे हैं। Go to Psalm 79:10. आइए भजन संहिता 79 पर जाते हैं। Psalm 79:10. If you see New Testament people everywhere, you know, recent person in our century there was one. If you know his name, our century, Father, forgive them.
देखिए हमारे क्षेत्र में ऐसा She ही said- ऐसा व्यक्ति ऐसे वाले- No. Our century, our time that हमारे समय में that ऐसा woman हुआ। came out and said on TV, Graham Stains's wife. बराबर है ग्राम सिंह पत्नी इसके पति को They asked मारा। her, "Do you want to go forward with this? Forward with this? Whatever judgment?" She said, "No." उस महिला से कहा गया तू इसके चाहती कि आगे कि उसका न्याय करे इन लोगों का Vengeance belongs to my Lord. उन्होंने कहा बदला लेना में Forgive me. पवित्रकारी है। अरे the whole world, that is why the church did not take it up. But the church, I'm so sad that the church did not take it up और जो कलीसिया भी इस बात को आगे नहीं बढ़ा because it's a false church. क्योंकि ये झूठी कलीसिया है। झूठी कलीसिया है. What a religion we have here. किस तरह का धर्म है हमारा? The church did not take it up लेकिन कलीसिया इस बात को आगे नहीं बढ़ा रही है and take it forward in the media. और प्रसार माध्यम में This is our religion. ये हमारा धर्म है। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा करो। This is the sad part. ये तो दुख की बात है। क्या कम निर्णय लेते हैं यार तुम लोग? क्या करते हैं? What you are doing? And what is outside churches are preaching? आप क्या कर रहे हो? बाहर के लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? You did not take this up to show Christianity. आप नहीं ये उस मतलब क्रिश्चियन क्या होता है वो दिखा नहीं रहे आप दर्शाने Our Lord and God Jesus Christ would have been glorified on media. देखिए अगर ऐसा किया होता तो हमारा जो यीशु मसीह जो परमेश्वर हाँ। इस प्रसार माध्यम में उसकी महिमा भी होती है This is the sad part. पर ये दुख की बात है ऐसा नहीं This is हुआ। the sad. Go to Psalm 79:10. 10 आए भजन संहिता What a false religion is 79 outside. वचन 10 आइए हम पढ़ते हैं। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। Glory to God. See this what is saying. How will the heathen know? किस तरह लोग जानेंगे? कैसा जानेंगे? How will the heathen know? किस तरह अन्य जाति जानेंगे इस बात Will को? you kill these people? Understanding or no here? आप समझ रहे हो या नहीं है? Till you hammer them, जब तक क्यों they will not know Jesus Christ. ऐसे इस तरह आसानी से And he will hammer them now. वो है। तुमको नहीं मारा, ऐसा से नहीं हो रहा है. The second coming of Jesus Christ. मारने के लिए आ रहे हैं अभी वो. क्योंकि अभी यीशु मसीह आ रहा है वो न्याय करने की हाँ। अभी वो किसी को क्षमा नहीं करेगा अनुग्रह नहीं है। क्षमा नहीं करेगा. अनुग्रह नहीं है तब आदमी को मालूम पड़ेगा अरे ये क्योंकि यही लैंग्वेज इन लोग जानते हैं. अच्छा का बात जानते नहीं है. But he says, see what is written here. देखिए क्या लिखा है See यहाँ what is written पे here. Please understand this. ये समझे Wherefore should the heathen say, where is their God here? Where is your God here? कहते तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है परमेश्वर? Where is thy God? Let him be known, they are saying. जाने Come on, let him be known. And what? जाने जाते जाने And how will he be known? कैसे He जानेंगे? has said, by revenging the blood of the servants. तेरे दासों के खून का पलटा लेने से वो होने जानेंगे। वाला है. That is going to happen. Then they will know. ये वो जाने जब होगा तभी Till जानेंगे then they will not know. तब तो वो नहीं Till जानेंगे then मैं बड़ा, मेरे पास करोड़ों रुपया है. I have crores. I have an empire of 600 crores. मैं 6,000 करोड़ का मालिक हूँ Till then they will not know. ऐसी घटना होने तो मैं नहीं जानेंगे Telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ Okay, take one more scripture. और एक वचन लेते हैं Go to Psalm 94. अरे भजन संहिता 94 पे जाएंगे Nobody will know this God. कोई भी Even the church will not know this God. Except a few. Except a few. The church itself does not know this God. Except a few नहीं people. जानती इस यीशु मसीह को Psalm 94, 1 to 7. See this. 91 to 7 7. अरे भजन संहिता 94 1 से 7 हम पढ़ेंगे आइए पढ़ते हैं हे यहोवा हे बदला लेने वाले परमेश्वर हे बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा हे पृथ्वी के नई उठ और घमंडियों को बदला दे हे यहोवा दुष्ट लोग कब तक डिंग मारते रहेंगे वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते सब अनर्थकारी बड़ाई मारते यहोवा वे तेरी प्रजा को पीर डालते हैं वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं वे विधवा और परदेशी का घात करते हैं और अनाथ को मार डालते हैं और कहते हैं यहाँ न देखेगा याकूब का प्रभु विचार न करेगा Glory to God. See the Psalm here. अब देखिए किससे भजन से लिखा है This is revelation.
This is revelation. देखिए ये होता है प्रकाश। This is when grace period is over. ये कब होगा? जब अनुग्रह खत्म हुआ, अनुग्रह का समय This खत्म हुआ, will, ये होगा। grace period is over. जब अनुग्रह का समय खत्म हुआ तब होगा, This will happen. ये होगा। See, they will, that is what John is seeing. यही बात तो योना देख रहा है। This is what John is seeing. When the saints are crying out to God. जबकि संत लोग जो अपने When. Same thing what is written in the Psalms. और यही बात तो भजन संहिता में लिखा हुआ है। Same thing. Okay, now at home you read one more Psalm, और 119 and 84. घर पे जाके आप भजन संहिता 119 और 84 पढ़े। Okay. Now these people all express the same revenge एक सारे लोग ने इसी तरह का अपना जो बदला लेने का जो on, प्रकट किया on the people who have shed their blood. वह उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनका लहू बहाया है। And this is the language the world understands. और यही भाषा है जो ये संसार समझती है। And God also knows this. और परमेश्वर भी इस बात को जानता है। Then just see now. अब देखिए, But when we go to Hebrews 12, जब आप इब्रानी के अध्याय 12 में जाते go to हैं, Hebrews 12. इब्रानी के अध्याय 12 पर जाते हैं, We are those people. हम वो लोग हैं। He says, vengeance is not mine, you are not yours. वो कहते हैं कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, Mercy and forgiveness is yours. क्योंकि दया और क्षमा आपका है, आपका काम। Mercy and forgiveness. I Then forgive. मैं क्षमा करता हूँ। All judgment I leave to this God. क्योंकि सारा न्याय है मैं परमेश्वर पर छोड़ता हूँ। That's what that woman said on TV. ये बात तो उसे मना नहीं कहा टीवी पर, That's what she said on TV. ये बात उसने टीवी पर कही। All judgment I leave to my God. सारा जो न्याय करने का काम I forgive. परमेश्वर छोड़ता हूँ। You know मैं the उसे name of क्षमा that करता हूँ। person at least? जब उस व्यक्ति का नाम He's a big powerful person. बड़ा ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। खुला घूम रहे अभी. खुला घूम रहे. Because of that lady. उस महिला के कारण को आज खुला घूम रहा है वो। Hebrews 12. Hebrews 12. 21 to 24 पढ़ो तो. आए इब्रानी अध्याय 12 वचन 21 से 24 तक पढ़ेंगे। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और पैलोटों के साधन सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए और सबके नए पुरुष के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आयो जो हाबिल के लहू के उसे उत्तम बातें कहता है। Glory to God. See, this is the change. देखिए ये बदलाव है From the old to the new. पुराने नियम से नए नियम में। Okay, now this is the change. अभी बदलाव Okay. है। Now what is written over here? And so terrible was that sight that Moses saw. किस तरह मूसा ने भयंकर देखा वो बात। I exceedingly feared that. उसे बड़ा डर गया वो उस The बात। writer of Hebrews is saying. इब्रानी कहते हैं मैं वो डर But गया उसमें। when you are come unto Mount Zion, when you come to Mount Zion सिय्योन के पहाड़ के पास जब आया and unto the city of the living God, और उस शहर के पास जो परमेश्वर the heavenly Jerusalem, स्वर्गीय यरूशलेम and to the innumerable company of angels, और लाखों स्वर्गदूत to the general assembly and the church of the firstborn, पलटे सादर सभा और कलीसिया which are written in heaven, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए and हैं to God the judge of all, और सबका न्याय परमेश्वर and to के the spirits of the just made perfect, पास सिद्ध के धर्म के आत्माओं and to Jesus, और जो यीशु मसीह जो the मध्यस्थी mediator of the new covenant, जो मध्यस्थी यीशु के और and to the blood sprinkling and the speaketh of better things than Abel. छिड़का उस लोगों के पास आए जो हाबिल के लोगों से उत्तम बातें करता है। When you forgive, जब आप क्षमा करते हो you see the peace on yourself. तो आप देखो आप में कितनी शांति आती है। Peace. You say, God will take care. तो आप ये कहोगे परमेश्वर इसका न्याय You will करेगा, have peace. तो आप पर शांति रहेगी, You will have peace. आपको शांति रहेगी। This is the new covenant. तो ये नई वाचा है। Then God said, I'll not leave you. फिर प्रभु कहते हैं मैं तुझे नहीं I'll छोड़ूंगा, not forsake you. मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, Because now you are in the better covenant. क्योंकि अब एक आप अच्छी वाचाओं में हैं। See, now our carnal thing don't like it. ये सांसारिक में ये बात नहीं Our जानते, carnal thing wants to take revenge जो सांसारिक लोगों को बदला लेना चाहते हैं and make problem for yourself और also. वो अपने आप को समस्या खड़ी करते हैं। When you want to take revenge, more pressure is there. देखिए आपको जब बदलाना तो आपको ज्यादा दबाव आ जाता You है, can't roam freely. तो आप आसानी से घूम फिर नहीं सकते हो। There is lots of pressure when you want to take revenge. जब बदलाना तो आपको बहुत सा दबाव आता है अपने जीवन पे, But when you forgive, लेकिन आप जब क्षमा करते हो then see how you roam. फिर आप देखो किस तरह घूमते फिरते There is हो, no pressure. आपको कोई दबाव नहीं। Okay, let's go further. आगे बढ़ते हैं। I'm reading. The blood of Abel हाबिल का लहू cried out for revenge, जो बदले लेने के लिए उसे पुकारा, whereas the blood of Jesus जब यीशु का लहू cried out for mercy. उसे दया के लिए पुकारा Jesus. And for forgiveness. और क्षमा के लिए पुकारा। What he said, I can call 12 legions of angels and finish this whole
Israel. देखिए यीशु मसीह कहते, मैं तो 12 पलटों को बुला सकता हूँ सर, इधर उधर समाप्त कर सकता हूँ। But it's not there. Not like this. पर लेकिन ऐसे नहीं है, See, it is not for the church. लेकिन ये कलीसिया के लिए नहीं है। Those who seek vengeance जो बदला लेने की खोज करते हैं have not understood the blood of Jesus वे नहीं जानते कि यीशु का लहू क्या है, was shed. किस लिए बहाया गया है। When the blood was flowing जब लहू बह रहा था, from Jesus' body, जब यीशु के शरीर से, from his head, उसके सर से, from his hands उसके हाथों से बह रहा and था feet, और उसके पैरों से लहू बह रहा he था, prayed, उसे प्रार्थना की, Father, forgive them. उसे कहा पिता अपने क्षमा कर। कैसा कहाँ मिलेगा यार यहाँ? Where do you get such a person here? ऐसा व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा? He is God Almighty. वो एक महान परमेश्वर है। You show us one person ना, अब एक व्यक्ति बताया ऐसा, and for a few I will teach Islam. और For a few, not for everybody. सर हर एक के लिए थोड़े जो For a इस्लाम few, I am going to teach Islam. और इस्लाम Then I will show you how much different it is from this. मैं बताऊंगा कितना अलग है इससे। I will show you how many people the Prophet only killed. अब मैं बताऊंगा कितने भोजों को मारा गया। Show you. Then you will know तब what आप a difference it is. कितना फर्क है इसमें। When the blood was flowing from Stephen's body, जब स्टीफन के शरीर से लहू बह रहा था, what did he say? क्या उसने कहा? Do not lay this act on them. उन पर ये दोष न लगाना। उन पे उन पे दोष गुनाह नहीं नहीं लगाना। लगाना। Glory to God. पत्थर आ रहा है यार उसके ऊपर। And you want to, if for a few, if you want to me to show you this historically and geographically, I will show you this. और ऐतिहासिक या भौगोलिक दृष्टि से आपको बताना हो तो मैं बताऊंगा आपको। About the Bible and about any other book. और बाइबल के बारे में हो या कोई और किताबों के बारे में Any बताऊंगा। other book, geographically take, historically take, whatever you want, जो चाहे आप लोग भौगोलिक लो ऐतिहासिक लो, मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या है। we will prove to you. मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। The world has taken this book to task. देखिए ये संसार ने एक किताब को एक कार्य करके लिया ऐसा ही नहीं। कि जान के- स्टीफन का बाप, स्टीफन का माँ, स्टीफन का बाप को जानने लगा आज दुनिया। What you know, what the church knows here. कैसे क्या जानते हो स्टीफन के माता पिता उसके- सब कुछ जानते हैं आजकल। सभी जानते हैं वो लोग, हाँ, you see what the church does not know. लेकिन कैसे नहीं जानते इस बात को, That is why there is no faith. क्योंकि उनमें विश्वास नहीं है। You want to know about Paul? आपको Can you पौल को see? जानना है? His father's father is known today. आज ऐसी बात है कि आज उसके पिता से पिता को And the जानते हैं। amount of land that they owned. और कितने भूमि उनके पास थी हाँ, in Turkey. उत्तर, This is known today. This is known today. ये आज जान गए कि कितना धन था उसके पास, कितना But the भूमि थी। church does not know. लेकिन कलीसिया इस बात को नहीं जानती है। नहीं जानती, नहीं जानती। See, that is the sad part. ये दुख की बात है। Okay, now when the blood was flowing from Stephen's body, he prayed in Acts 7:16. This is the cry of the new covenant saint. देखिए ये जब स्टीफन के शरीर से लोग भरा तब उसने प्रार्थना की, और यही तो नई वाचा की बात कहते हैं। One mark of a true disciple of Jesus that he does not desire vengeance. ये शिष्य की बात है कि जिसने बदला लेना नहीं चाहा। कितना भी आपको सताया होगा, कितना बहुत सताया, बहुत सताते हैं आदमी लोग, क्योंकि वो आदमी लोग ही खराब है, उन लोग बहुत सताते हैं। But as a New Testament person, अगर मैं एक नया व्यक्ति हूँ, नए करा व्यक्ति तो मुझे क्षमा vengeance करना is है। yours. मैं कहूँ ये बदला लेना प्रभु तेरा काम है, वो तेरा, I will take care. मैं उस पर ध्यान दूंगा। This is the way that then God says, I will not leave you. ऐसे जब आप करोगे तब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। There is no desire for vengeance. और कोई इच्छा न होने की हम In बदला our- ले, There is no prayer for vengeance in the New ऐसी कोई प्रार्थना Testament. भी न हो कि हम उसमें बदला लेने की। Not a single prayer. एक ऐसे Paul को तो पकड़ के मारा है. You know this? He was for dead. वो सब मरा पड़ा था। You see if he has prayed for vengeance. अगर आप बदला लेने की प्रार्थना करोगे, एक भी बदले का प्रार्थना मुझे दिखाओ बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में. Not a single. एक भी ऐसी प्रार्थना नहीं जहाँ पे लिखा है Not कि a बदला लेना single. है। If somebody going to hit you that badly, you will get up and if you got the power, na? If you got the power, what you will do? देखिए अगर कोई आपको थप्पड़ मारे हाँ। और आप में सामर्थ्य तो आप क्या करोगे? What you will do? आप क्या करोगे? You imagine if you have the आप power. कल्पना करें, आप कल्पना करें, आप क्या करोगे? अगर आपको शक्ति है, Not there. सामने आप पूरा हाथ उठाते तो आप क्या This is करोगे? Christianity. लेकिन ये तो क्रिस्ती का आपको हाथ नहीं उठाना है। Okay, so the slain saints in the Revelation 6 are obviously Old Testament saints because they are asking for vengeance to be taken on their enemies. देखिए यहाँ पे जो लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य में छठे 5वें मोहर के बारे में, ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है जो बदला लेने के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, when John was given the vision, जब यूहन्ना को दर्शन दिया गया, it was only 65 years एक सिर्फ वो जो वर्ष 65 since the church had been established.
65 वर्ष में जो कलीसिया स्थापित हुई थी, And there were very few slain for Jesus Christ. और वहाँ पर थोड़े ही लोग थे जिनका You लोग can आया था, count. जिनको घात किया गया था। Okay? Now, most of them did not utter one word. See what Peter said. ठीक है, पतरस ने क्या कहा? He said, turn me upside down here. And जो उसको उल्टा crucify me, लटका- but crucify उसने me. क्या कहा? मुझे उल्टा लटकाओ, सर नीचे और पैर ऊपर ऐसे। Yes. This is the New Testament. ये नया करा है, This is the church. ये कलीसिया है। Okay. Most of the slain saints were the ones that Jesus spoke of. अभी वापस ले लो brother. 20. See, these are the saints. Matthew 23, 34, 35 देखो. ओके, पढ़ो। हाँ, पर. मत्ती के अध्याय 23 में वचन 34 से आगे पढ़ते हैं हम। 34, 34, 35. 35। हाँ, 35 भी पड़ेगा तो चलेगा. 33, 33, 34, 35. ओके। मत्ती अध्याय 23 वचन 34 और 35 हम पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिसे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। Glory to God. Okay. Now those people. Now there is a particular number of saints और ऐसे कुछ गिनती है जो संतों की, who have to be slain. जिनको घात किया गया, नहीं, अभी मारना बाकी है. घात करना बाकी है, For the word of God पर जो वचन के कारण घात करना बाकी है, and for their testimony. और उनके गवाही के कारण। And God knows that number. और प्रभु जी जानते हो उस संख्या क्या है। In the past 2000 years, और पिछले 2000 सालों में many Christians कई मसीह have died मर गए, asking God to forgive और क्या प्रार्थना करते कि प्रभु उनके क्षमा those करने who के लिए, killed them. जिन्होंने उसको मारा, उनको क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने Tell me के लिए। of one person in India who was killed. अब एक व्यक्ति बताया जिसे In India who was killed beside that Graham Staines, there was one more person who was killed. Huh? Thomas, glory to God here. Glory to God, Apostle Thomas. थोमा प्रेरित, As he was coming down the steps, they stabbed him. जब वो सीढ़ी से उतरा था, उसे हत्या कर They दी। stabbed him. उसे It's history यार religion is history यार. जाता ही क्या नहीं अंदर? जाता ही नहीं लगता अंदर. It's not going on the inside. अपने दिमाग में जाने रही बात को। It is history यार. ये इतिहास है कि थोमा भारत में मारा गया। हाँ, जाता नहीं है, चेंज नहीं होते हम लोग. You are not changing only. अब बदल नहीं रहे हो, It is history. ये इतिहास है। He was stabbed. उसे मतलब हत्यारा घुसा के मारा। Today also you can go and see that church. आज भी जाके आप कलीसिया देख सकते हो, Where the steps are there. वहाँ पे वो सीढ़ियाँ Where हैं, Thomas was coming down. जहाँ पे थॉमस उतर रहा था। Yeah, it is history here. Please take this seriously here. इसे आप गंभीरता से ले। It is not to come here and sing some songs and go here. देखिए यहाँ आकर कोई गीत गाना है, इसका मतलब It ये is नहीं होता। historical. You will die. I am telling you, you will die. Okay, I don't like to tell this, मैं बताना नहीं चाहता, but be careful. लेकिन ध्यान रहे, Please be careful. सच में ध्यान हाँ। रहे। See, we all want to be together. हम सभी एक साथ रहना चाहते हैं। In the past 2000 years, many Christians have died asking God to forgive those who killed them. 2000 सालों में कितने लोग हुए जिनको मसीह के कारण उनको मारा गया, पर उन्हें क्षमा किया है, They क्षमा की were प्रार्थना killed की। for the word of God उन्हें मारा गया, प्रभु वचन के कारण मारा and for गया, the testimony they held. और उनके पास जो गवाही थी उसके कारण उनको मारा गया। As soon as that number, God is over, जब तक कि वो संख्या पूरी न होले, God will come down in judgment. परमेश्वर आएगा न्याय करने की संख्या। Till then we must be patient. तब तक कि हमें धीरज रखना है। अभी Revelation वापस पढ़ो. Revelation वही 5th. फिर वापस पढ़ो। फिर एक बार हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का वचन 9 से पढ़ते हैं, 5वीं मोहर के बारे में। जब उसे 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्हें बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उन्हें हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीत दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। वध होने वाले हैं. वध होने वाले Future tense. वध होने वाले हैं. और भी है बहुत है जो बहुत होने है। वाले हैं.
तब तक रुको. And which is the New Testament word here? Tell me. ब्रदर स्पीकर नए वचन कौन सा वचन है? हमारे brethren, glory to God. भाइयों. Glory to God. Brethren, भाइयों. एक भी बार भाइयों मेरे को दिखाओ ओल्ड टेस्टामेंट में. चलो. पुराने नियम में एक भी वचन है कहीं पे ऐसा लिखा है भाई? नो भाई. There is no भाई. ये सब हम भाई. This is the truth. ये सच्चाई है. This forms it powerful. ये हमें सामर्थ बना देता है. See, this is the difference between the old and the new. यही तो पुराने. Why the difference? Why the difference? क्यों फर्क है? Why the difference? क्या फर्क है? Same God. ये वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर. Same God, but वही why the परमेश्वर. difference? तो फर्क क्यों है? Huh? Because God Himself was killed here now. क्योंकि अभी यहाँ पर देखा तो परमेश्वर उसी को तो वही मारा गया. परमेश्वर को मारा क्रूस पे. क्रूस पे मारा गया. This is the difference. ये फर्क है. See, our God is always like that. हमारे पर But हमेशा ऐसे ही है. till that sacrifice was given. और जब तक वो बलिदान नहीं दिया गया. Till that time. And that sacrifice is going to get over now. अभी वो After बलिदान the grace period. अनुग्रह के बाद तो वो समाप्त हुआ. You will see the Old Testament again. अब फिर पुराने नियम को देखोगे. You will see the Old Testament again. फिर आप पुराने नियम को Okay, go देखोगे. to Matthew 24:9. This is the fifth sign. See, Jesus only spoke. देखिए यीशु मसीह स्वयं का ये स्वयं, पांच चिन्ह है. उसने बोला है. You see this. 24:9. नहीं. मत्ती अध्याय 24 वचन 9. Everybody got it? See properly. मत्ती अध्याय 24 वचन 9 है. मैं पढ़ता हूँ. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें बुलवाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे. Glory to God. See, Jesus Himself is talking about the fifth seal. देखिए यीशु मसीह स्वयं बता रहा है इस पांच चिन्ह के बारे में. All the seals Jesus only spoke in Matthew 24. मत्ती 24 में यीशु मसीह स्वयं बता रहा है बातें. And then see this. And they shall deliver you up to the and shall kill you. और तुम्हें मार डालेंगे. See the church of Jesus Christ. देखिए यीशु मसीह की कलीसिया देखो They कैसे. will kill you and you shall be hated और तुमसे नफरत करेंगे. of all nations सारे राष्ट्र for my name's sake. मेरे नाम के कारण. If you follow the true Jesus अगर आप सचमुच मसीह के सच्चे and if people don't hate you, अगर लोग आपके नफरत नहीं you करते are not following the true Jesus. तो सही बात यह है कि आप यीशु मसीह के पीछे सच And your family people will not like you. क्यों ऐसे मैं तो अपने I'm telling परिवार you में the पसंद नहीं truth. करता है. सच्चाई बता रहा हूँ. Telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ. They find discomfort when you are there. और आप जब उसमें होते हो तो उनको एक They असर हो find जाते a हैं. particular discomfort ये असहज हो जाते when हैं. you are there, standing there. जब आप यीशु मसीह में हो तो परिवार के सदस्य में That's असहज the हो जाते हैं. difference. ये फर्क है. That's the difference. They will hate you वे आपसे नफरत करेंगे because they are fully carnal, क्योंकि पूरी तरह सांसारिक fully है. natural, fully carnal, स्वाभाविक है. fully. सांसारिक है. They will hate you. See, this is what Jesus is saying. ये बात तो यीशु मसीह कहता है. I'm reading. The day is coming when every nation on the face of the earth will hate the true disciples of Jesus. फिर पढ़ता हूँ. तब ऐसा समय आएगा जब उसके कारण सब लोग जाति के लोग तुझे भय रखेंगे. अगर तुमको हेट नहीं करेगा तो you are not following the true Jesus. Let me tell you this very frankly on your face. Nominal Christians and compromising believers will not be hated. देखिए ऐसे जो है सामान्य है जो क्रिस्ती है या जो समझौता करते हैं ऐसे क्रिस्ती से कोई नफरत नहीं कोई करेगा. कुछ नहीं करेगा. In fact, they will be accepted and honored. और वैसे लोगों तो मान सम्मान हो जाएगा. दोनों और क्या ग्रहण किया जाएगा. मुझे नो प्रॉब्लम इसके बारे में कुछ नहीं. इसको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी इसको ऐसा भी घुमा सकता है, ऐसा भी घुमा सकता है. कोई इश्यू नहीं इसका. Not like they will true disciples. और वो सही शिष्य नहीं है. Those will be accepted, but the ones who hold God's word and जो ऐसा proclaim व्यक्ति- the whole counsel of God will be hated. देखिए ऐसा व्यक्ति जो यीशु में वचन को थामे रहता है, जो सारी बातों को सही तरह से पकड़ लेता है, ऐसे व्यक्ति से संसार नफरत करेगा. And the Bible teaches शासक कहता at है that time उस समय many will fall away, बहुत many will go away. For कई example, लोग suppose I said this is not like this. This is not like this. You can't just put your head in both. इधर भी जाके मजा करेगा, उधर भी यीशु के बाद यीशु करेगा. ऐसा नहीं. When you start telling them, they will leave you. देखिए जब कहना शुरू करोगे परमेश्वर बारे वो आपको छोड़ देंगे. वो छोड़े 100% छोड़. They will leave you. वो आपको छोड़ देंगे. They will. You want them to be there, but they will leave you. आप चाहते हो वहाँ वो उनके साथ रहे पर वे आपके साथ नहीं रहेंगे. That's why Apostle John said, they are not one of us. और इसलिए होना कि वो हम में के थे पर हम में के नहीं है. He must have definitely told them, तुम जो कर रहे हो बराबर नहीं कर रहे. He must have told them.
से उन्हें बताया होगा What you are doing is not correct. तुम जो कर रहे हो तुम सही नहीं कर रहे हो, It's not correct. सही नहीं है, That's why they left. इसलिए तो वो छोड़ गए। That's why the Apostle John said, they are not one of us. इसलिए Anyway, यूहन्ना कहते हैं वो हम में से नहीं है, see, these are the truths. ये सच्चाई है। Now, at that time, many will follow. And they will join Babylonian Christianity. Babylonian Christianity, which I am going to show you. मैं बाइबल जो क्रिश्चियन का समय था वो बताऊंगा। Everything is Babylonian. Start to end is Babylonian. That is that Christianity. False compromising churches, they will join. वे ऐसे लोग होंगे जो समझौता करने वाले लोग जो आके हमसे जुड़ जाएंगे। Who is allowing you to do anything? वो आपको आजाद है, आप कुछ भी कर सकते हो। If I see this boy in the bar, I'll slap him. You know that? If I only see him in the bar, अगर मैं बार बार उसे थप्पड़ मार दूंगा, भले वो पुलिस को बुलाए, मैं मार दूंगा उसको, नहीं तो यहाँ नहीं आना। Our boys should never step in the bar. हमारे बच्चे हैं वो कभी बार में ना जाए। Never, never. कभी नहीं, कभी नहीं। This is a very horrid place. ये बहुत ही भयंकर जगह स्थान है। This is the place where you should never step in. ऐसे स्थान है यहाँ पे आपको कभी अपने कदम नहीं डालना है। All Babylonian Christianity people go there. ये बाइबल जो क्रिश्ची है वो सब ऐसे स्थान पे आते They हैं। will join Babylonian Christianity, false compromising churches, ऐसे कलीसिया जो समझौता करते हैं, ऐसे कलीसिया। because their lives will be safe there. क्योंकि उनका जीवन वहाँ पे एक सुरक्षित रहता है। मेरा pastor को कुछ फर्क नहीं यार, थोड़ा बहुत पैसा डालेगा तो बस है, और क्या करने का है? थोड़ा पैसा डाले, no, so little money you put there, okay, no problem, no problem. अरे किधर है तू शिवन? इधर दूसरा टाइम मत जाना। ये टाइप के पास्टर मिलेंगे, दूसरा टाइम नहीं जाना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। The true people of God will not tolerate it. जो परमेश्वर सच्चे जो मसीह है वो कभी इस बात को सहन नहीं करेंगे। सहन नहीं करेंगे। अगर पता ही नहीं है तो ठीक है, पता ही नहीं है तो ठीक। और if you are a Babylonian Christian, see, if you are not the true Christian, if you are another Christian, no problem. तो सब चलता है क्या नहीं सिस्टर, चलता है क्या ना ब्रदर? बोलो तो से नहीं चलता है क्या? सब चलता है। कम्युनियन भी लेके फिर दारू पीएंगे, सब चलता है। लेकिन हम लोग को नहीं चलता है। This is the truth. See, there will be Babylonian Christians. Such Christians will betray the true disciples of Jesus. ये ऐसे जो क्रिश्चियन होंगे जो बाइबल के वे सच्चे मसीह लोगों से नफरत करेंगे। नफरत करेंगे। See what Jesus is saying. Go to ठीक है, John इसको कहते हैं। 16:33. देखिए यूहन्ना के अध्याय में 16:33. See what Jesus is यूहन्ना saying. 10:16-33 None of our boys should ever even touch, according to me, I cannot monitor, but none of our boys should even touch him. हमारे किसी भी शराब में Touch, not even touch it. I'm telling you truth. मैं सच्ची बता रहा आपको हूँ। जो करना है करो। यूहन्ना 10 अगर हमको पता लगे तो आपको हम छोड़ देंगे। उसको हाथ नहीं लगा। बहुत मजा कर सकते हैं दुनिया में। अच्छा शर्ट पहनो, अच्छा कपड़े पहनो, डू ऑल दिस थिंग, डोंट टच दैट, डोंट टच इट। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, देयर इज नो फन इन दैट। शराब पीने में कोई मजा नहीं है। You lose respect of your own children. I'm telling you truth. आप अपने बच्चों के सामने आपकी इज्जत गिरा दो। इज्जत जाएगी। Your own children you will lose respect. आपके बच्चों For that small drink. एक थोड़े से शराब के लिए आपकी इज्जत नहीं रहेगी। Jesus said to disciples, John 16. यूहन्ना 16:33 हम पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Glory to God. He said you will have tribulation. वो कहते हैं कि तुम्हें क्लेश होगा, You will have trouble. और तुम्हें समस्या आएंगी। एक आदमी नहीं यार जो बिना ट्रबल का है यार। What you are talking? There is not in the trouble. He saying I'll give you peace. वो कहते हैं कि समस्या में मैं तुम्हें शांति दूंगा, I'll give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा। In your trouble, समस्याओं के मध्य में I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा। See? Now this is what Jesus is speaking, huh? देखिए, यीशु मसीह In कह the रहे हैं। world you will have tribulation. वो कह रहे हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, You will have trouble. तुम्हें समस्याएं आएंगी। It is not to pray to remove the trouble. ये नहीं है कि हम प्रार्थना करें वो समस्या को निकाल दे। It's to endure the trouble. And Jesus said, I will remove it. यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे निकाल दूंगा। Because yes, all the church has been troubled everywhere over the world. ये संसार पर सारी कलीसिया में तो समस्या है, क्लेश है। This is what John is saying in John 16:33. यही तो बात Now है। see what Jesus prayed. देखिए यीशु मसीह क्या प्रार्थना की देखिए। यीशु ने क्या प्रे किया वो तो देखो। John 17:15.
आइए यूहन्ना 17 वचन 15। हाँ, पढ़ो brother। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना 17 वचन 15। यीशु का प्रार्थना है, यीशु का प्रार्थना है। देखिए यीशु मसीह ने कही हुई प्रार्थना है। देखिए मैं यह विनती नहीं करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, तो यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। Pray to God here. I am not praying that they be taken out from this world. मैं ये प्रार्थना नहीं करता उन्हें उठा ले जगत से, I pray that they be protected from evil. मैं उनकी प्रार्थना करूँ कि तुम्हें दुष्ट से बचाए रख। This is the prayer of the Lord Jesus. तो ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। We want to escape tribulation. हमें समझ से भागने का हम सोचते हैं। All through centuries there is tribulation for Christians. क्रिश्चियों के लिए पहले से संसार से तकलीफ आती है। Because we are brought up in this society and we are have some comfort, we are thinking that we should go from tribulation. देखिए ऐसे समाज में ऐसे हम बड़े हुए, हम लोग हमें क्लेश से भागना चाहिए। This is not what the Bible teaches. ऐसा नहीं कि शास्त्रीय विवाद This सिखाता is है। never when the Bible teaches like this. इसे कभी नहीं सिखाता है। See, Jesus prayed not to take us out of this world, देखिए यीशु ने क्या प्रार्थना की, तुम्हें संसार से ना उठा ले, but to be an example to this world. पर उसके संसार के तुम एक उदाहरण बना रहे। When the world is in trouble, we will have peace, he said. जब संसार को समस्या होगी, तकलीफ होगी, तब तुम्हें शांति रहेगी। We will have peace. हमें शांति रहेगी। Exactly what he did in Goshen. देखिए जैसे If गोशेन you study the Old Testament. अगर पुराना नियम पढ़ोगे गोशेन प्रांत के बारे में, याकूब के समय के, No light there, light was there. देखिए पूरे मिस्र में लाइट नहीं थी, पर गोशेन में Glory to God. Read the Bible properly and see ठीक है। सही से शास्त्र पढ़े समझ that these are his people. ये उसके लोग थे। If you think that you are his people, अगर आप ये सोचेंगे हाँ उसके लोग हैं, तो if you first of all think that you are his people, आपको पहली बात तो ये सोचते हैं कि आप उसके लोग हो। you see, many Christians teach that we will be taken out of the world so that we will not face tribulation. देखिए कई ऐसे क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि इस संसार में समस्या भी तो Many people teach that we will be taken out of the world so that we will not face tribulation. कई लोग ऐसे सिखाते हैं कि संसार में समस्या भी तो हमें बाहर उठा लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। There is a difference between tribulation and the wrath of God. देखिए वहाँ पे जो ट्रिब्यूलेशन क्लेश और परमेश्वर का क्रोध, इसमें फर्क है। From the wrath of God, yes, we will be taken out. From the wrath of God, क्रोध से we will be taken out. उसमें से हमें बाहर निकाला जाएगा। This is what I'm going to show you. ये मैं बताऊँ, मतलब क्लेश में हम बने रहेंगे, Jesus, परंतु क्रोध के समय पे परमेश्वर हमें बाहर निकाल लेगा। Jesus prayed we should be kept from sinning, not from tribulation. If you have some problem in your house, you don't pray, remove this problem, the problem will increase. देखिए अब अगर अपने घर में समस्या और आप प्रार्थना करेंगे ये समस्या निकालो, पर समस्या और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। See, this is not taught in the church. ये बात हमें कैसे सिखाई नहीं वो जाती। तो बोलते अगर ये पैस्टर का नहीं चलता तो दूसरा पैस्टर के पास भागो, ये इसका नहीं चलता तो तीसरा पैस्टर के पास भागो। This is not like this what the word of God teaches. नहीं ऐसा परमेश्वर वचन हमें नहीं सिखाता है। Lord, everything is from you. Everything is from you. जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। If I have got the good, this is what Job said. If I have got the good, then I also take the bad. योग क्या कहता है कि अगर मुझे अच्छा मिला है तो मुझे बुरा भी मिला। हाँ, बुरा भी मैं लो, I will take it in my stride. Then see what God does. फिर देखिए परमेश्वर क्या करता है। God बोलता है, you saw Job? आपने योग को देखा? You saw Job? He's telling his enemy. तुमने जॉब को देखा? तुमने उनसे कहता शत्रु से मतलब शैतान से तुमने योग को देखा? ऐसा आदमी के साथ मैं है, वैसे हम हैं। और तू कुछ नहीं कर सकेगा उसका। You cannot do anything to him. तो उसको कुछ भी नहीं कर सकता। This is what the Bible teaches. ये तो शास्त्र में सिखाता है। See, Jesus prayed like this. Jesus knows that the persecution and tribulation are good for all. और यीशु मसीह के समय कहता है क्लेश और जो सताव आएगा ये हमारे लिए अच्छा है। In fact, I'll go little further. This is our calling. अगर मुझे आगे और बढ़ो ये हमारी बुलाहट है। हाँ, ये अपनी बुलाहट है, सब बुलाहट है। See this, you don't know this God. That is why the problem in the church here. आप परमेश्वर नहीं जानते, इसलिए तो समस्या है। ये तो समस्या है। You don't know this God. आप इस परमेश्वर नहीं जानते हो। You don't know this God. You don't know what He requires, what He wants, with what He is happy, वो किस तरह खुश होता है, what He is sad. कब वो दुखी होता You है, have no idea. आपको कोई कल्पना नहीं है। That's why the church stands at this stage. और इसीलिए तो इस स्तर पर आप कैसे खड़ी है। Some false teaching and false for not showing the word of God. गलत शिक्षाओं के कारण ये हो रहा है।
Okay, when the early apostles went about establishing the churches जब पहले के प्रेरित जब अपने कलीसिया को स्थापित करते थे and और सिखाते थे and teaching them, और उन्हें बताते थे सिखाते थे, they did not say God loves you so much वे ये नहीं कहते थे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता that है He will help you to escape. तो आपको ऐसा सहायता करके आप उसे See what they said. देखिए उन्होंने क्या कहा है Acts 14:22 पढ़ो brother. प्रेरितों का See what they अध्याय said. 22 We must follow God's word. जब परमेश्वर वचन को की ओर चलना है 14:22 14:22. प्रेरितों का अध्याय 14 वचन 22 प्रेरितों का अध्याय 14 वचन 22 आइए हम पढ़ते हैं। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। I am telling you from the word of God. देखिए मैं आपको अपने वचन से बता रहा हूँ, Word of God. अपने वचन कहता है He's showing like this. ये बता रहा है। Okay, now this is what they thought. देखिए ये उन्होंने सोचा। Now go to Revelation 6, अब पढ़े हुए के 6 अध्याय पे आते हैं 12 to 17 पढ़ो। अब देखो ये देखो। छठी मोहर हाँ, Revelation 6, 12 to 17. छठी मोहर हाँ, बराबर। आए अब अभी भी छठी देखो। मोहर की ओर आते हैं। अभी प्रकाशित वाक्य अध्याय Revelation is 6 ours. वचन 12 से आगे आए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 12 जब उसे छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धर्मवान और सामर्थ्य लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खो में और चट्टानों में जा चिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो कि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? This is the wrath of. ये परमेश्वर का क्रोध है। This is the wrath of the Lamb. ये Revelation 6, मेमने का क्रोध 12 है। to 17. ये जो 12 से 17 Before this, we are gone. इसके पहले ठीक है। That also I'll teach you. No Amen. problem. Now you see here carefully. Okay. Now, and I had beheld, opened the sixth seal, and a great earthquake, and the sun became black as sackcloth, and the room became. Okay. Now, if you go carefully, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे okay. Now, tribulation is the wrath of man. Means the wrath of the man will remove on the true believers of Jesus Christ, and on Israel, and the true believers of Jesus Christ. It's the wrath of man through Satan. देखिए जो मनुष्य क्रोध आएगा शैतान के द्वारा आएगा वो इजराइल में से जो हाँ। सही लोगों को बाहर निकालेगा। आज भी चाइना में, आज भी अफ्रीका में, तो खुदा के स्पेशल आदमी लोग हैं क्या? उस टाइम का आदमी लोग क्या स्पेशल है? They are special? No. The wrath of man is going to be terrible through the Antichrist. जो शैतान की वजह उसके द्वारा जो आएगा बहुत बड़ा भयंकर होगा। Okay, now let us see. Now the wrath of God. परमेश्वर का क्रोध है। Now first time wrath appears in Revelation. जो पहली बार ये प्रकट हुआ है। First time you see wrath. तो पहली बार देखोगे क्रोध जो परमेश्वर क्रोध जो This is in Revelation 6:12 to 17. छठे अध्याय के 12 वचन से 17 Okay, तक। now you see now you see carefully. यहाँ पर देखिए Here is the first place in the book of Revelation we find the word wrath. In contrast, tribulation fifth is the fifth seal is tribulation. Okay. Now, here पढ़ो brother Matthew 24, 24 बस 29 to 32. At that time, at that 24, 29 to 32. Many will die. मत्ती many अध्याय will die. 24 वचन 29 से आगे आए। मत्ती अध्याय 24 वचन 29 से आगे पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 24 वचन 29 उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। Stop. See Revelation now. Compare Revelation. देखिए अभी तुलना करें यहाँ से। एक हाथ Revelation पे रखो ब्रदर। ये पढ़ा है नहीं एक हाथ रखा ना तो अभी वापस वो वापस पढ़ो जरा ऊपर फिर का एक बार पढ़ता हूँ मैं। अभी प्रकाशित वाक्य पढ़ता हूँ। देखिए मत्ती की तरफ अपना हाथ रखें और प्रकाशित वाक्य के ऊपर भी आए जो हमने पढ़ा था। छठा अध्याय 12 वचन से पढ़ते हैं। जब छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला। ओके अभी वापस मैथ्यू पढ़ो मैथ्यू अब मत्ती का देखिए अभी पढ़ो मत्ती का देखिए उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा।
the time. देखिए समय है, Jesus is speaking about it. देखिए यीशु मसीह इस बारे में बता रहा है मत्ती में। We'll do it in detail next time. अगली बार We से see गहरे the से sequence in Matthew 29 to detail we do. Immediately after the tribulation of the now see this. अभी 24 Matthew 24 ले लो वापस. 29 to 31 पूरा पढ़ो. अब हम पूरा पढ़ते हैं, 24 से 29 से 31 तक हम पूरा पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। उन दिनों के तुरंत बाद, हाँ, those days, the days of the tribulation, fifth seal, क्लेश के समय के बाद में the fifth seal, see, we see, हाँ, पढ़ो आगे पढ़ो। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाशीय शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ, तब दिखाई देगा। Show me one place in the Bible मुझे एक स्थान बताया है शास्त्र में where he is coming secretly. जहाँ पे वो रहस्यमय तरीके से आता One है। place I want to see. There is teaching going on, but by some great, good man of God also they are teaching. ये अच्छे से होगा, वो भी ऐसे सिखाते हैं इस बारे में। But where show us in the Bible? मुझे आप बताइए शास्त्र में कहाँ पे लिखा है? एक भी बार जहाँ यीशु secretly आएगा। जहाँ पे यीशु बड़े रहस्यमय तरीके से आता वो है। तो जोर से आने वाला है। वापस पढ़ो ब्रदर। फिर एक बार पढ़ता हूँ मैं, 30 वचन पढ़ता Now हूँ। 29 in English read 29, but English you read 29 English first. Matthew 24 29 first. क्यों भैया? Immediately after the tribulation. Stop. Immediately after the tribulation. ये क्लेश के दिनों के बाद, Immediately after the tribulation, now he will come. Now the wrath of God will come. अब परमेश्वर क्रोध आएगा। Not before the tribulation. क्लेश के पहले नहीं, क्लेश के तुरंत बाद। See this rich people they अमीर and लोग, sophisticated people. जो कि अच्छे लोग जैसे, They don't like this. उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। They don't like to face the tribulation. वे इस क्लेश को सामना करना नहीं चाहते। And many in the church also don't like this. और कलीसिया में वैसे कई लोग हैं जिस क्लेश का सामना नहीं करना चाहते। Maybe Abraham is here. He may not be there. बड़ा अब्राहम होगा, हम नहीं। Maybe no Abraham नहीं, अपना Abraham. अपना छोटा Abraham. अपना छोटा Abraham शायद रहेगा. अच्छा, ओके। हाँ. वो समय He होगा। may be there. But you say, so that how much we have to pray for him then? You just imagine. आप कल्पना करो कितने उसके लिए प्रार्थना करनी कितना है। प्रार्थना करना पड़ेगा उसके लिए. हाँ. See that what he says is immediately after the tribulation. Immediately after the tribulation. क्लेश के तुरंत बाद Of those days shall the sun be darkened, सूर्य अंधकार हो जाएगा, and the moon shall not give her light, चंद्रमा प्रकाश नहीं and the देगा, stars shall fall from heaven, तारे आकाश से गिर and पड़ेंगे the powers of heaven shall be shaken. और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। And then shall appear the sign, the Son of Man, तब मनुष्य पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, तब पृथ्वी के सब लोग कुलों के लोग छाती and they पीटेंगे shall see the Son of Man coming in the clouds और मनुष्य पुत्र को बड़ी सामर्थ of heaven and with power and great glory. आकाश के बादलों आते देखेंगे। And he shall send his angels. This is the rapture. देखिए ये है उठा लिया जाना। He shall send his angels अपने with a great sound. कहाँ से सीक्रेट है यार ये? ये कहाँ से रहस्य में बड़ी तुरही की आवाज। ये सीक्रेट कहाँ है? There is a secrecy in this. यहाँ पे कहाँ पे I'll tell you all these things, how it started, how the doctrine all came, from which country it came, and when it came, which man started it. Everything we know. सारी बातें इसी बारे में बताऊंगा आपको। And he shall send his angels with a great sound, बड़े तुरही के शब्द के साथ of a trumpet, and they shall gather और वे सारे आकाश his elect चारों दिशाओं से from the four winds and from one end of the heaven to the other. हर एक छोर से छोर तक चारों दिशाओं से उसके चूड़ों को I'll do this in detail. Now one more scripture I'll take. और एक वचन लूंगा मैं उसके गहरे से बाद में बताऊंगा। 30? Okay. One last scripture we'll take. First Thessalonians 4:16. First Thessalonians 4:16. In the tribulation, many will fall away. बहुत जन, many will fall away. Many people give their heads also. कोई बहुत से ऐसे लोग भी But many will say, नहीं चाहिए. Let us go to Catholic Church back here. कई लोग ऐसे अपने पुराने धर्म में चले जाएंगे। पुराने धर्म में चले जाएगा। कोई कहेगा चलो अपना हिंदुइज्म ही अच्छा था। हाँ, अपना हिंदुइज्म अच्छा है, अपना कैथलिकिज्म अच्छा है, अपना सिखिज्म अच्छा है, वहाँ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगा। Those days उस समय में those days of my small Abraham. उस समय अब छोटे बच्चे का It's going to take long time.
But those days are coming. वो समय और समय है, वो आ रहे समय। First Thessalonians 4:16. पहला थिस्सलुनीके का अध्याय 4:16 आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ। उस समय ललकार, हाँ। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। कहाँ से सीक्रेट है? Where is the secrecy here? Tell कहाँ पे me. यहाँ पे रहस्य रहा? Where is the गुप्त है। secrecy? ये गुप्त तो है ही नहीं अब है। पढ़ो, वापस पढ़ो brother. फिर पढ़ता हूँ 16 वचन कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा हाँ। और पहले तुरंत फूकी जाएगी। हाँ। जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। Glory to God here. मुझे All nothing is secret. तो कोई And बात why नहीं। will God do it in secret? He is such a powerful God here. Why will God do anything in secret if He is such a powerful God? ऐसे सामान्य परमेश्वर है, क्यों से रहस्यमय करना है? I'm going to teach you next time when we come. जब I will हम teach you अगली the बार sixth इसको seal in detail. मैं आपको छठी मोड़ के गहराई से In बताऊंगा। detail. And then now starts more and more. फिर उसके आगे फिर जो और ज्यादा 7, 8, you will see now. फिर You सात will साल में see. जब आप कैसे You will समझते see. हैं, फिर आप देखोगे। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, my God. मैं आपके पास आता हूँ। Lord, प्रभु, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ all the youngsters here, my God. यहाँ पे ये सारे जवानों के लिए, Lord, प्रभु, that Lord, ये प्रभु, we start families, Lord, हमने परिवार शुरुआत की which are है, in Jesus Christ, जो my God. यीशु मसीह में है। Lord, we understand who you are, Lord. हम जानते हैं प्रभु तू कौन है, Lord, प्रभु, we understand the Old Testament, Lord, हम पुराने नियम को जानते हैं पिता, and the new, my God. और नए करार को भी। And know now who you are, my हम God. जानते हैं पिता तू कौन है पिता, Lord Jesus, यीशु मसीह, this church, Lord, ये कलीसिया with all their heart, जो अपने संपूर्ण हृदय से say Jesus is our God. वे कहे कि यीशु हमारा परमेश्वर है, Lord, you are our God, Lord. तू प्रभु है, Lord, प्रभु, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that families that we start, Lord, जो परिवार जो भी शुरुआत की are है, in Christ, my God. जो यीशु मसीह के लिए शुरुआत की है, We are in Christ, Lord. ये प्रभु यीशु मसीह में है। Lord, प्रभु, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ all that Christ has commanded us, Lord, जो भी मसीह ने हमें आज्ञा दी है we will fulfill, Lord, हम उसे पूर्ण करें in our whole lives, my और God. पूरे जीवन में पिता Lord, प्रभु bless us, Lord, हमें आशीष कर to take one step at a time, my God, एक समय एक कदम आगे बढ़ाने का समय one step, my God, एक कदम to know you better and better, my God. तो आपको और अच्छी तरह जाने पिता I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that Lord, प्रभु the new families that we have started, my जो God, नए परिवार जो हमने शुरुआत की है husband will love his wife, Lord. पति अपने पति से प्रेम करे We show the relatives, Lord, उनके रिश्ते जाने that this girl is mine. ये लड़की है वो मेरी है Is mine, Lord. मेरी है Is mine. वो मेरी है Given to you by you, given to you, जो आपको दी गई Lord. प्रभु Given to by God to me. वो प्रभु आपने दी है Let us start like this, my God. इस तरह शुरुआत हो But we cannot start without your strength, my God. पिता बिना आपके सामर्थ्य हम इसे शुरुआत नहीं कर We सकते pray, my God. हम प्रार्थना करते हैं We pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं that you will bless us. तो हम हमें आशीष करेगा Give us strength, my God. हमें सामर्थ्य देगा You will bless our young men, और Lord. हमारे जवानों को तो सहायता करेगा You will आशीष bless करेगा। them, my God. उन्हें आशीष करेगा Lord, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ you will bless them with finance also, my God. धन के मामले में तो आशीष To करेगा know you, Lord. ताकि वो आपको जाने To know you, my God. तो आपको जाने Because, Lord, क्यों पिता when we come to the sixth seal, my God, जबकि हम छिपी मोड़ की ओर आते हैं you will, the church will know, Lord, तो कैसे जानेगी whom you hate, Lord, तुम किससे नफरत करता है whom you hate, my God. किससे नफरत करता The है church will know, Lord, तो कैसे जानेगी will know whom you hate, my किससे God. नफरत करता है Lord, bless our young men, और Lord. हमारे जवानों को आशीष कर Lord, that they may love, Lord, ताकि वो तुझसे प्रेम करे they may love, my God. या आपसे प्रेम करे Father God, पिता परमेश्वर I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ all the widows, Lord, सारी विधवाओं के लिए and for the orphans, my और God, सारे अनाथों के लिए all the churches in Mumbai, my Lord. मुंबई की सारी कलीसियाओं And I की pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that the churches in Mumbai will know you, Lord. ताकि मुंबई के लिए आपको जाने Will know you, my वे आपको God. जाने That every meeting, Lord, on Sunday, Lord, जो इतनी सारी जो सभाएं हैं be for your glory, my God. तेरी महिमा के लिए Only for your glory, Lord. तेरी महिमा के लिए हो I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु और उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम Amen. आमीन Church, कलीसिया I'm just inviting a young boy. मैं अपने जवानों को आमंत्रित करता हूँ He's a young boy, जवानों आमंत्रित prayerful boy.
जो प्रार्थना के लोग, the prayerful boy. जो प्रार्थना के I'm बच्चे, inviting him उनको आमंत्रित करता हूँ to pray कि for the प्रार्थना- sick of this church इस कलीसिया की जो and the sick of all the churches in Mumbai. जितने बीमार हैं उनके I लिए am inviting him, Lord, to pray, Lord, कि for the प्रार्थना people. करें। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना I invite Nikhil to just pray. Father God, I come before you, God. Lord Jesus, today I stand here in your presence. Father, as I pray for the sick, I ask you, mighty King, let there be healing today. Let there be healing today. The Bible says, by the blood of Jesus we are healed. The Bible says, healing is children's bread. The Bible says, in my name they shall heal the sick, raise the dead, and set the captives free. Father, today, as I stand here, every sickness, every spirit causing sickness in the body of anyone, any ancient sickness, every recurring sickness, every sickness in the body of anyone, I command you in the name of Jesus, get out in the name of Jesus, disappear in the name of Jesus, disappear by fire, disappear by the blood, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I curse you in the name of Jesus. Father, the Bible says, I will do whatever you ask for in my name, so that the Father's glory will be shown through the Son. Father, today, reveal your glory through Jesus Christ. Reveal it in the name of Jesus. Let your name be glorified. Let those who we pray for come to you. Let those who are healed today believe in you like never before. Father, let your name be glorified. Let your blood bring healing. Let there be divine healing today, from the crown of the head to the sole of the foot, in anyone's body. Father, I curse that sickness. Let it be gone in the name of Jesus. Let it disappear in the name of Jesus. But the Bible says, because of the anointing, the yoke shall break, the burden shall be lifted off the shoulders, and the rod of the oppressor shall be taken away. Father, right now, every burden, every sickness, be gone in the name of Jesus. Be gone in the name of Jesus. Be gone in the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah.